Dear students, today we are going to discuss PN junction diode. We all are familiar with PN junction diode. We used to say it is an instrument which is formed by the help of combining a p-type semiconductor with n-type semiconductor. But question is this, कि what is rectifier? What is rectifier? Then we used to say it is an instrument which is used to convert AC into DC. That's why it is known as rectifier. Right? See here what we have written. As we know, a PN junction diode allows current to pass through itself only when it is forward bias. ये आप लोगों को पता है कि एक पीएन जंक्शन डायोड जो है केवल अपने से तब करंट पास होने देता है जबकि वह फॉरवर्ड बाइज में होता है. रिवर्स बाइज जब होता है तो वो करंट अलाउ नहीं करता. राइट. In case of reverse biased, it does not allow electric current to pass through itself. Right. फॉरवर्ड बाइज में यह पास होने देगा लेकिन रिवर्स बाइज में पास नहीं होने देगा. बट AC and we know that AC is such a type of current which changes direction continuously, which changes direction periodically. Right. तो अगर periodically डायरेक्शन चेंज करता है तो जो है कभी लेफ्ट साइड से फ्लो करेगा, कभी राइट साइड से फ्लो करेगा. और अगर इससे हम लोग पीएन जंक्शन जोड़ देते हैं तो केवल एक डायरेक्शन वाले को फ्लो होने देगा और एक डायरेक्शन वाले को फ्लो नहीं होने देगा. इट मीन दैट बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट वी कैन कन्वर्ट AC इंटू DC. हम लोग AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं by the help of this very PN junction diode, by connecting this very PN junction diode in this circuit. This process of conversion of AC into DC is known as rectification. And here PN junction diode is used as a rectifier. That's why it is known as a rectifier. See this very figure. As we know that an AC is in the form of sine function or cosine function. Then let us suppose we have given here sine function. Then see here, it means that shape of AC, waveform of AC will be this. Right? Ab you tell me, see here, let us suppose source is here and current is flowing in this circuit. इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो करंट कभी इधर से फ्लो करेगा, कभी इधर से फ्लो करेगा. or not. For half time period it will flow along this direction and for rest half time it will flow along this direction. Right. Let us suppose this direction is this and this direction is this. So its shape will be AC, shape of AC will be this. No, it mean, and now you tell me, अगर इसमें से मैं इसको और इसको उड़ा दूं, खत्म कर दूं, right, then we will get only these two. We will get only these upper portion. Upper portion means we will get current only along one direction or not. It means that by using, अगर ऐसा हम लोग कर लेते हैं, it means that we have little bit converted AC into DC. क्वेश्चन इज हाउ. क्योंकि हमने दूसरे डायरेक्शन वाले करंट को जब अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उसको हम लोग यहाँ रोक रहे हैं और पीएन जंक्शन यही काम करता है. दैट्स व्हाई दिस वेरी पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज रेक्टिफायर. क्वेश्चन इज दिस कि कैसे इस वर्क को पीएन जंक्शन डायोड परफॉर्म करता है. देन टू नो दैट सी दिस वेरी फिगर. See figure number 2. As it is well known fact to you all that a PN junction diode is a low voltage operating instrument. एक PN junction diode जो है एक low voltage operating instrument है and the AC voltage which is available to us
that is at high voltage. So our first work is to convert high voltage into low voltage, and the instrument which is used to convert high voltage into low voltage is your transformer. तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग ट्रांसफार्मर के हेल्प से पहले जो है हम लोग इस एसी को जो है एसी हाई वोल्टेज को एसी लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। इट इज आल्सो वेल नोन टू यू ऑल दैट कि जो है ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो है जब प्राइमरी को एसी मेंस में जोड़ेंगे तो सेकेंडरी के पास जो वोल्टेज मिलेगा वही वोल्टेज मान लीजिए हमने किसी लोड को मीन्स किसी इंस्ट्रूमेंट को दिया है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी इसको जो एसी मिलना चाहिए दिस इसको जो करंट मिलना चाहिए दैट शुड बी डीसी। क्वेश्चन इज हाउ, सी हियर, नाउ सी हियर, सेकेंडरी कॉइल के पास जो आपको वोल्टेज मिल रहा है दैट इज लो एसी, राइट। एंड एज इट इज एसी इट मीन दैट कभी ये इधर से फ्लो करेगा तो कभी इधर से फ्लो करेगा, राइट। तो लेट अस सपोज इनिशियली इट इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। इमेजिन कीजिए कि यह जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू किया है, राइट। एंड here we have connected our PN junction diode, right। then what will happen, जब करंट मेरा इधर से फ्लो करेगा, इसका मतलब जब करंट इधर से फ्लो कर रहा है इट मीन दैट इट इज पॉजिटिव एंड एंड इट इज नेगेटिव एंड। एंड फॉर डायोड ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इट मीन दैट हमने सर्किट को पॉजिटिव टू जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं पीएन जंक्शन को उसको पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्ट किए हुए हैं in this very particular situation, so it will conduct electricity because it will be in forward bias and it will conduct electricity and your instrument will get, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वह उसको करंट मिलेगा, राइट। आफ्टर हाफ रोटेशन जब आपका करंट इधर से फ्लो करना शुरू करेगा देन व्हाट विल हैपन, इट मीन दैट यह पॉजिटिव हो गया है और यह निगेटिव हो गया है, राइट। इट मीन दैट नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एंड जब यहाँ से करंट चलेगा लोड होते हुए, जब लोड से होते हुए जब आपका जो है पीएन जंक्शन के पास पहुँचेगा, इसका मतलब फिगर को देखिए तो लगता है जैसे आउटपुट वोल्टेज का पॉजिटिव पीएन जंक्शन के नेगेटिव से कनेक्टेड है और आउटपुट वोल्टेज का जो है निगेटिव पीएन जंक्शन के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इट मीन दैट इट इज़ रिवर्स बाइज, और अगर यह रिवर्स बाइज है तो रिवर्स आपको ये पता है कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइज में काम नहीं करता है, रिवर्स बाइज में करंट फ्लो नहीं करने देता है। इट मीन दैट करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट, सो योर लोड RL will not get current. It means that your load will get current only for half cycle. पूरे साइकिल फुल साइकिल का केवल हाफ साइकिल में करंट फ्लो कराएगा सर्किट में और हाफ में नहीं कराएगा। हाफ में फ्लो कराएगा, हाफ में नहीं फ्लो कराएगा, हाफ में फ्लो कराएगा, हाफ में नहीं फ्लो कराएगा। इट मीन दैट नो डाउट हमको यहाँ जो करंट मिल रहा है दैट इज अलोंग वन डायरेक्शन। दूसरे डायरेक्शन में क्या है, मेरा करंट गायब हो जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन वाला करंट गायब हो जा रहा है। अगर ऐसे हम लोग बल्ब को जोड़ दें या किसी इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दें तो हाफ सर्कल के लिए करंट मिलेगा, हाफ के लिए नहीं मिलेगा। अगर बल्ब आप जोड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए जलेगा फिर गायब, फिर जलेगा फिर गायब, फिर जलेगा फिर गायब। एंड वन मोर थिंग, जो करंट मिलेगा वह जो है उसका देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मीन्स इसका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। इट मीन दैट यह कंप्लीट एसी नहीं है बट वी कंप्लीट डीसी नहीं है, बट वी आर गेटिंग करंट अलोंग वन डायरेक्शन, राइट। एंड लिसन हियर, वी हैव converted half circuit of AC into DC. That's why this very rectification process is known as half wave rectification and instrument is known as half wave rectifier, right? If an alternating voltage is applied across a diode in series with a load, a pulsating voltage will appear. See here one term is used, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है
pulsating voltage. फिर से मैं बोल रहा हूँ, if an alternating voltage is applied across a diode, डायोड के क्रॉस अगर हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, विच इज इन सीरीज विद अ लोड, एक लोड के साथ में से एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, टेक एग्जांपल ऑफ बल्ब, बल्ब के साथ सीरीज में है, देन व्हाट वी आर गेटिंग अ पल्सेटिंग वोल्टेज. पल्सेटिंग वोल्टेज मीन्स डू नॉट कांस्टेंट करंट, वोल्टेज मेरा फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज मेरा बढ़ रहा है फिर घट रहा है. अ पल्सेटिंग वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द डायोड only during the half cycle of the AC, not full, right? और वो हाफ कब, when your diode is forward biased, right? That's why it is given here, if an alternating voltage is applied across a diode in series with a load, a pulsating voltage will appear across the diode only during the half cycle of the AC input, during which the diode is forward biased. This type of rectifier circuit is known as half wave rectifier, and the process is known as half wave rectification. इट मीन दैट यहाँ पर हमने फुल एसी को नहीं, हाफ एसी को कन्वर्ट कर पाए डीसी में. देन क्वेश्चन इज दिस कि कैन वी कन्वर्ट होल एसी इनटू डीसी? देन आंसर इज यस, एंड फॉर दैट वी हैव नीड ऑफ 2 डायोड्स. हमको 2 डायोड का जरूरत पड़ेगा इसमें. बाय द हेल्प ऑफ दीज 2 डायोड्स वी कैन कन्वर्ट फुल एसी इनटू डीसी. We used to write the circuit using 2 diodes give output rectified voltage corresponding to both positive as well as negative half of the AC cycle, and it is known as full wave rectifier. तो उस केस में क्या होगा, अभी तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में केवल ये वाला हमको मिल रहा था, केवल ये वाला मिल रहा था, ये वाला गायब हो जा रहा था, ये वाला मिल रहा था, ये वाला गायब हो जा रहा था. बट नाउ वी आर गेटिंग दिस आल्सो, दिस आल्सो. इट मीन दैट अगर ऐसा पालें इट मीन दैट वी कैन से कि वी हैव कन्वर्टेड होल एसी इनटू डीसी. क्वेश्चन इज हाउ, कैसे ऐसा कर सकते हैं? देन टू नो that see this very figure. सबसे पहले तो हमने ट्रांसफार्मर के हेल्प से जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया. एंड आफ्टर दैट जरा ध्यान से देखेंगे, इट इज योर सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, राइट? अब इसके 2 एंड बनते थे, एक एंड ये और एक एंड ये. पिछले थ्योरी में पढ़ा कि for half time period it will be positive and it will be negative, but for next half time period it will become negative and this way it will become positive, right? अब देखिए जरा सा ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखिए, तो जो है हमने दोनों एंड से जो वायर लिया है, यहाँ पर भी एक डायोड को जोड़ दिया है, यहाँ पर भी एक डायोड को जोड़ दिया है, राइट? और यहाँ से बीच से हमने जो है ये क्या किया है, एक वायर लेकर के जो है, और इन दोनों वायर जो आ रहा है यहाँ जो है, यह जो दोनों वायर आ रहा है यहाँ के बीच से एक वायर लेकर के हम लोग जो है लोड को जोड़ दिए हैं, मीन्स बल्ब को जोड़ दिए हैं. एंड इन दिस वेरी केस वी विल गेट फुल करंट, फुल डीसी करंट. क्वेश्चन इज हाउ. तो जरा ध्यान से देखेंगे. लेट अस सपोज एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट it is your positive, this very end is positive and this very end is negative, right? Let us suppose. अब हमने क्या किया है, बीच से एक सर्किट, बीच पॉइंट से एक ले लिया है. इमेजिन कीजिए कि 10 वोल्ट हमको मिल रहा है, तो 0 वोल्ट पर ये हो गया और ये 10 वोल्ट पर हो गया, राइट? ये एंड. अब हमने एक बीच से जो है एक वायर निकाला जो है, राइट? और यहाँ पर लेके चले गए थे. यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट. हेयर वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट. अब जरा सा ध्यान से देखेंगे. नाउ दिस एंड इज पॉजिटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड ऑफ 5 वोल्ट कैन बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. इसको नेगेटिव कंसिडर किया जा सकता है. अब क्या देखिए तो क्या होगा, यह
यह जो है पॉजिटिव इंड है, यह पॉजिटिव इंड है और यह माना जाएगा नेगेटिव इंड है। अब देखिए जरा सा, सी दिस वेरी डायोड, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, डायोड का पॉजिटिव जो है आउटर सर्किट के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एंड यू कैन से नेगेटिव जो है नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। इट मीन दैट इट इज फॉरवर्ड बाइज, सो योर डायोड विल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, डायोड विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएगा देन योर लोड विल गेट करंट एंड बल्ब विल ग्लो, राइट। फॉर हाफ साइकिल, फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल व्हाट विल हैपन, 10 वोल्ट यहाँ हो जाएगा, इस इंड पर हो जाएगा और 0 वोल्ट यहाँ हो जाएगा, राइट। अब बीच से हम लोग यहाँ पर वायर लेंगे तो ये क्या बीच वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑफ 5 वोल्ट। एंड नाउ सी हेयर, हमने यह कहा कि दिस वेरी इंड, नाउ दिस वेरी इंड विल बी एट 10 वोल्ट, दिस वेरी इंड विल बी एट 0 वोल्ट एंड दिस वेरी इंड विल बी एट 5 वोल्ट। अब जरा सा देखिए, यह मेरा पॉजिटिव बन गया है, यह पॉजिटिव बना हुआ है और ये निगेटिव बना हुआ है। देखो तो जरा सा, ये चल रहा है, इट इज योर डायोड, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और निगेटिव जो है निगेटिव जो है निगेटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, निगेटिव निगेटिव से जुड़ा हुआ है। इट मीन दैट अगेन दिस वेरी डायोड इज फॉरवर्ड बाइड, सो अगेन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ साइकिल के लिए जब इधर पॉजिटिव था तब भी कंडक्ट किया, हाफ साइकिल के जब इधर पॉजिटिव था तब भी कंडक्ट किया। इट मीन दैट बाय द हेल्प ऑफ टू डायोड्स वी कैन कन्वर्ट होल AC इनटू DC, right, by the help of this very center tap arrangement, by the help of this very center tap arrangement, right। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला AC हाफ पार्ट तो मिल ही रहा है, दूसरा पार्ट भी हमको AC DC मिलने लगा, ये तो मिल ही रहा था, यह भी मिलने लगा है। इट मीन दैट no doubt our bulb will glow continuously, our bulb will get current continuously, means, and we will get unidirectional current, means you can say हमने AC को DC में कन्वर्ट कर लिया है, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में अब करंट फ्लो कर रहा है, राइट। मेरा करंट जो है एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। एक डायरेक्शन में फ्लो क्यों कर रहा है, कैसे कह देंगे, जब आपका ये डायोड पॉजिटिव था तो करंट यहाँ से होते हुए लोड को मिल रहा था, मीन्स लोड से करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। जब ये इन पॉजिटिव बना तो यहाँ से करंट होते हुए फिर लोड से इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स योर लोड इज गेटिंग करंट along a particular direction for whole time, that's why we can say we have converted AC into DC। बट हेयर इज़ वन प्रॉब्लम, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जरा सा देखिए तो DC में जो हमको वोल्टेज मिलता है दैट इज कांस्टेंट वोल्टेज, बट द वोल्टेज विच वी आर गेटिंग हेयर दैट इज वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल। क्या होगा, बल्ब जो है ग्लो करना शुरू करेगा, इसका ग्लो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ग्लो घटने लगा घटने लगा घटने लगा, एकदम बल्ब ऑफ हो गया, फिर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, फिर घटने लगा घटने लगा घटने लगा। It means that intensity of glowing of bulb will vary. Why? Due to change in voltage. और हम लोगों के AC और वोल्टेज चेंज हो रहा है, सो करंट विल आल्सो चेंज, एंड वी नो दैट इन केस ऑफ DC वी ऑलवेज गेट कांस्टेंट करंट। इट मीन दैट नो डाउट इसको हमने जो है यूनिडायरेक्शनल जरूर बना दिया है, बट वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। इट मीन दैट हेयर वी हैव नॉट कंप्लीटेड AC completely into DC, मीन्स अभी भी इसमें जो है अभी भी इसमें AC कंपोनेंट है, अभी भी इसमें है। देन क्वेश्चन इज दिस कि अब AC हमने AC को DC में कन्वर्ट किया लेकिन अभी भी AC इसमें है, इट मीन दैट देयर इज नीड टू फिल्टर AC फ्रॉम DC, एंड दैट्स व्हाई वी यूज अ फिल्टर सर्किट। क्वेश्चन इज दिस कि ये फिल्टर सर्किट क्या होता है, देन सिंपली वी यूज टू से कि अ फिल्टर सर्किट इज यूज टू फिल्टर AC फ्रॉम DC। हमने DC में कन्वर्ट कर दिया था लेकिन अभी भी इसमें AC बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस AC को निकालेंगे एंड वी विल गेट DC। क्वेश्चन इज हाउ, सी हियर, द रेक्टिफाइड वोल्टेज इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स ऑफ द शेप ऑफ साइनोसॉइड्स, मीन्स हमको जो यहाँ पर मिल रहा है
जो करंट मिल रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव, not full sine wave, but you can say sine wave. No doubt we have converted it into unidirectional, but it does not have a steady value. इसकी value steady नहीं है. It means that now there is need to get a steady value. Then and only then we can say we are getting completely DC, or we have converted AC into DC. Then to get a steady DC output, ये जो पल्सेटिंग वोल्टेज है इसमें कुछ जो है हमको फुल एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा तभी कह देंगे कंप्लीट डीसी में कन्वर्ट किया। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, राइट। एक कैपेसिटर इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल विद लोड, लोड के साथ हम लोग पैरेलल में एक जो है ये लोड, योर लोड इज RL, इसके साथ हम लोग जो है एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन इज दिस कि अगर कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे देन व्हाट विल हैपन। देन फर्स्ट यू सी द फिगर, सी द सर्किट। सी दिस वेरी सर्किट। या हमको जो है एसी जो है पल्सेटिंग एसी जो है, पहले हमने इसको सॉरी ये हमने एसी दिया, इट इज योर रेक्टिफायर मीन्स ट्रांसफार्मर वाला पार्ट जो है और डायोड वाला पार्ट है। यहाँ से अब जो दो वोल्टेज मिल रहा है नो डाउट दैट इज यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज, बट वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये एनसी है, हेयर यू हैव लोड मीन्स यहाँ से हम लोग ये लाए हैं लोड को दिए हैं, बट योर लोड विल नॉट गेटिंग कंप्लीट डीसी, राइट। देन टू कन्वर्ट इनटू कंप्लीट डीसी, सी है हम लोग लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर हमने जोड़ दिया, लोड के पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया है, राइट। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी फंक्शन ऑफ दिस वेरी कैपेसिटर। देन सी है हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में पढ़े थे, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में पढ़े थे इफेक्टिव ऑपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस offered by a capacitive circuit is equal to 1 by 2 pi nu into C, राइट। हमने पढ़ा था XC इक्वल टू ओमेगा 1 by omega C and omega is equal to 2 pi nu, so we can write XC will be equal to 1 by 2 pi nu into C. It is well known fact to you all that for AC nu is high, nu means here frequency, AC का फ्रीक्वेंसी हाई होता है और DC का फ्रीक्वेंसी जो होता है लो होता है। अब DC का फ्रीक्वेंसी लो होता है, जरा ध्यान से देखेंगे, DC का फ्रीक्वेंसी लो होता है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मीन्स योर कैपेसिटिव सर्किट विल ऑफर लार्ज अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस इन केस ऑफ डीसी। और फ्रीक्वेंसी एसी का फ्रीक्वेंसी जो होता है वह हाई होता है तो ये वाला वैल्यू हाई हो जाएगा तो रिएक्टेंस जो हो जाएगा लो हो जाएगा। मीन्स यह जो कैपेसिटर है एसी के लिए लो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा और डीसी के लिए हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, राइट। एसी के लिए लो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा और डीसी के लिए हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो जब एसी को लो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा तो एसी क्या होगा, कैपेसिटर से पास कर जाएगा। और डीसी को हाई रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, इसका मतलब डीसी इससे पास नहीं हो पाएगा। तो अब डीसी को पास होने का रास्ता यह है, डीसी इससे पास हो जाएगा। आपके सेटअप को डीसी चाहिए था, एसी नहीं चाहिए था, and now your setup is getting only DC. It means that here we have filtered AC from DC. AC को हमने छान लिया, AC को हम लोग इस रास्ते से लेकर चला दिए और केवल इससे अब DC जा रहा है। It means that now your instrument is getting complete DC. It means that we have filtered out AC from DC and this very circuit is known as filter circuit, right.
This very process can be performed by connecting an inductor in series with RL also. यह लोड रेसिस्टेंस के साथ अगर हम लोग एक इंडक्टर कनेक्ट कर दें सीरीज में लोड के साथ, तब भी यह प्रोसेस हो सकता है, तब भी हम लोग को जो है एसी मिलेगा। क्वेश्चन इज हाउ। तो जरा सा देखिए, तो हमने इट इज योर लोड, ये आपका लोड है, एक इसको आप भूल जाइए, जो है हमने लेटर सपोज कि हमने एक जो है लोड के साथ जो है सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, राइट। इट इज़ वेल नोन फैक्ट टू यू ऑल दैट, आपने एसी में पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में, इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफ फॉरवर्ड बाय इंडक्टिव सर्किट इज इक्वल टू ओमेगा एल विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल, राइट। और अभी आपने कहा कि एसी का जो होता है, एसी का न्यू जो होता है हाई होता है, और डीसी का जो है न्यू जो होता है दैट इज लो होता है, नहीं, यू कैन से जीरो, राइट। देन सी हियर, if frequency of DC is low, if frequency of DC is low, what does it mean? Reactance offered by inductor in the path of DC will be low, will be negligible, will be zero। तो इसका मतलब क्या है, यह जो है डीसी कंपोनेंट को नहीं रोकेगा इंडक्टर, डीसी को पास होने देगा, मीन्स इससे पास होगा, आपके लोड से पास होगा, राइट। और डीसी के लिए न्यू हाई हो गया, जब न्यू हाई हो गया तो रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा, मीन्स यह इंडक्टर जो है डीसी को रोक लेगा और एसी को रोक लेगा और डीसी को नहीं रोकेगा। इट मीन दैट डीसी विल पास, इट मीन दैट योर इंस्ट्रूमेंट, योर लोड विल गेट कंप्लीट डीसी, राइट। इट मीन दैट बाय द हेल्प ऑफ एसी, by the help of capacitor in parallel with load or inductor in series with load, we can filter out AC from DC, right? And when we will do this, then we will get complete AC। It mean that शुरू में जरा देखिए आपका वेव का इक्वेशन ये बन रहा था, बाद में हमने इसको कन्वर्ट किया और फिर इसका जो वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, अब हम वो इससे एसी पल्स को निकाल लिए। इट मीन दैट नाउ वी आर गेटिंग कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स वी आर गेटिंग कंप्लीट डीसी, राइट। That's why we used to say this circuit is used to filter out AC from DC. So it is called filter. It means that you can say this circuit or this is known as filter. And by the help of this, we can get complete DC, or we can convert AC completely into DC. Okay.